there are mainly two category, one vacuum based and another without vacuum, which is a solution based. This is very new and emerging technique, है ना, ये बहुत ही न्यू है और emerging है। क्यों? यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम है, इट्स ए लो कॉस्ट प्रोसेस। यहाँ कॉस्ट बहुत कम है, यहाँ पे कॉस्ट बहुत हाई है। यहाँ पे प्रिकर्सर जो है वो लिक्विड चाहिए, precursor मतलब raw material, and here the precursor has to be solid and here the precursor has to be gas। ये हमने तीन चीजें देखी थी लास्ट टाइम। Depending upon how solid get converted into atom, and from the atoms you need to convert into film। So this process, solid to atom, can be done via sputtering, can be done via thermal, can be done via electron beam, can be done via pulse laser. So many methods are there. And this gas to film also, or gas to film and in between dissociation, गैस के बीच में क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। क्योंकि कोई गैस है, मान लीजिए गैस है SiH4, I want to dissociate it into silicon and hydrogen. So that dissociation takes place using either plasma, meaning voltage. It can be done using low pressure. It can be done using metal organic CVD. So these are the different methods. In solution, how you can form a layer? Using printing, using electrode deposition, using spin coating, using colloidal synthesis, and so many etc. So many ways are there. These are thin film deposition techniques, no problem. This we have already understood. What is the method? So there are two methods. One is chemical method. हम सारा का सारा इस पूरे lecture के अंदर और इस पूरे syllabus के अंदर और इस पूरे course के अंदर we will mainly focus on thin film deposition using vacuum based technique. Vacuum based meaning अब दो तरीके की हो गई, one CVD and the another one is PVD. We will only discuss about the PVD, and in PVD we will discuss about the thermal and we will discuss about the sputtering. So there are two methods, physical method and chemical vapor deposition method. So physical method meaning momentum देके, momentum क्या है? Physics का phenomena है। So momentum देके atoms को eject करना, atoms ejection, that is a PVD. CVD meaning chemical reactions by chemical reaction. This is a CVD. Okay. Now, what is the meaning of CVD? CVD is a process whereby a solid material, कोई भी solid material है, उसको डिपॉजिट किया जा सकता है। एक सॉलिड मटेरियल इज डिपॉजिटेड तो हमेशा सॉलिड ही होगा, है ना। ये है आपका, ये क्या फिल्म है? ये फिल्म क्या है? बेसिकली ये सॉलिड ही तो है, ये लिक्विड तो है नहीं। फिल्म बनने के बाद तो ये सॉलिड ही हो जाती है। तो ये सॉलिड मटेरियल इज डिपॉजिटेड कहां से? फ्रॉम ए वेपर बाय ए केमिकल रिएक्शन। एक वेपर से, और वेपर कहां से बनी? केमिकल रिएक्शन से। और वो केमिकल रिएक्शंस कहां होंगी? अकरिंग on number one, on or in the vicinity of normally heated substrate surface। कोई substrate है जो मान लो ग्लास का substrate है और वो heated है ये, या तो जस्ट इसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस होंगी या इसकी विसिनिटी में होंगी, यहाँ कहीं होंगी। और यहाँ कहीं होंगी तो यहाँ पे एटम डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूज होके यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे, और एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो यहाँ पे एक फिल्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। Okay, the solid material is obtained as a coating, a powder or a single crystal। अब ये कुछ भी हो सकता है। ये कोटिंग बहुत फर्स्ट क्लास कोटिंग हो सकती है जिसकी एडिशन जो है बहुत ही अच्छा हो, जो वहां पे बहुत अच्छे से एडेसिव हो। ये पाउडर फॉर्मेशन भी हो सकता है, जब आपने ग्लास के ऊपर मान लो कोई फिल्म बनानी चाहिए तो वो फिल्म प्रॉपर फिल्म ना बन के पाउडर की तरह यहाँ पे पार्टिकल चिपक गए सॉरी, पाउडर की तरह पार्टिकल चिपक गए। ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा? ये देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जैसे मीन फ्री पाथ। सब लोगों को आई हैव टोल्ड यू
मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या कि अगर मीन फ्री पाथ बहुत कम है तो क्या होगा, अपना एटम्स बार बार कोलिजन से अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देंगे एंड व्हेन दे विल रीच एट द सबस्ट्रेट दे विल सिट वेयर एवर दे विल रीच। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो उससे क्या होगा, फिल्म एमोर्फस, एमोर्फस मतलब पाउडर जैसी फिल्म बन सकती है। और अगर मान लो आपने टेम्परेचर, अच्छा खासा टेम्परेचर दे रखा है सबस्ट्रेट को, सो दैट दे आर कमिंग, द एटम्स आर कमिंग एंड देन दे आर डिफ्यूजिंग ऑन टू द सबस्ट्रेट, दे मे फॉर्म सिंगल क्रिस्टल। So depending upon what process parameter, कौन से process parameter, by varying the experimental conditions, कौन सी experimental conditions और कौन से process parameter, या तो कोई क्या कर सकता है, no I wanted to have a different substrate material and then I wanted to see how the film formation is। हो सकता है ग्लास के ऊपर फिल्म अलग बने, हो सकता है सिलिकॉन के ऊपर फिल्म अलग बने, हो सकता है पीईटी सबस्ट्रेट या स्टील के ऊपर फिल्म अलग बने, ये भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टी के साथ अलग अलग तरीके की फिल्म बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ किस तरीके के एटम ऑलरेडी हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, और उन एटम्स के साथ इन एटम आने वाले एटम्स की बॉन्डिंग कैसी होगी, उन बॉन्डिंग के हिसाब से डिफरेंट कंडीशंस की फिल्म बन सकती हैं। Somebody can say, no, I don't want to change the substrate material, I only want to change the substrate temperature. मैं substrate temperature को vary करना चाहता हूँ and then I wanted to see the film properties. Somebody can say, I wanted to change the composition of the film, composition of the reaction gas mixture. So whatever the gas I am inserting, let's say I am inserting silane and let's say I'm inserting hydrogen. Somebody can say, no, I don't have a hydrogen, I have a silane and I have a methane, CH4, let's say, or I have a C2H2, or I have a C2H6, some other gases. And then I wanted to see the film properties, whether this carbon also get added into the silicon or not, whether I will be getting silicon carbide film or only silicon, or how much carbon I will get in the silicon. These properties can be changed. Somebody can say, no, I will change the total pressure gas flows, I will change the pressure inside the chamber. मैंने जो gas insert की है, somebody can say मैं थोड़ा, some amount of the gas I will insert. Somebody can say, no, I will insert large amount of gas, and then I'll see how the properties is going to change. So these are all research topic. जो इस पे research करना चाहता है उसके लिए ये topics है. Materials with different properties can be grown. So अगर आप experimental conditions change करोगे, you can grow the materials with different properties. जैसे मान लो कार्बन है, अब कार्बन के आपने अलॉय पढ़े होंगे, कितने तरीके के फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। देखो डायमंड भी कार्बन का, देखो ग्रेफीन भी कार्बन की, ग्रेफाइट भी कार्बन, ये सब कार्बन के ही फॉर्म तो हैं। C60, ये जो आपने पढ़ा हुआ कहीं पे, फ्लोरीन जिसको कहते हैं फ्लोरीन, ये सारे कार्बन के ही तो फॉर्म हैं। तो ये कैसे बनते हैं अलग अलग? जस्ट बाय वेरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। सिलिकॉन की फिल्म भी बन सकती है, आपको मैं बताता हूँ, नेट पे देखिएगा आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिलिकॉन की फिल्म भी बन सकती है, सिलिकॉन के डॉट्स भी बन सकते हैं, सिलिकॉन के वायर्स भी बन सकते हैं। आप देखेंगे जैसे खेत के अंदर ना, किसी फील्ड के अंदर आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा राइस वगैरह का या सीड वगैरह की आपने कहीं पर वो देखी हो कि कैसे ग्रो होते हैं, तो इस तरीके से सीड के पेड़, इस तरीके से राइस के पेड़ इतने स्ट्रेट खड़े रहते हैं। ऐसे ही यू कैन मेक अ सिलिकॉन नैनो वायर वेरी स्ट्रेट, they are silicon nanowire. So just depending upon the experimental conditions, sometimes you can get a nanowire, sometimes you can get a film. So depending upon the experimental conditions, you can control the growth of the film also. Control the growth of the film. You can control the growth. Growth of what? Growth of the film. फिल्म की ग्रोथ को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट बाय वेरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। सो ऑल दीज आर रिसर्च टॉपिक, ये सारे के सारे रिसर्च के टॉपिक है। ओके,
कैसे क्या काम होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन का, कैसे वर्क कैसे करता है। तो सीवीडी का चैम्बर ये नहीं है कि पीवीडी के चैम्बर से बहुत अलग होता है। मान लो कल को आपने स्टार्टअप खोला, तो स्टार्टअप में किसी आपने तो पीवीडी चैम्बर बनाने शुरू कर दिए और आपसे किसी ने मांग लिया कि सीवीडी का चैम्बर दो जी हमें दो। अब आप उससे कह रहे हो कि नहीं जी सीवीडी का तो हमें आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल तक ले जाके बता रहा हूँ, सबसे लोएस्ट लेवल तक ले जाके बता रहा हूँ कि क्या सीवीडी के चैम्बर में डिफरेंस होता है। कोई डिफरेंस नहीं है। सीवीडी का चैम्बर भी वैसा ही चैम्बर है। यहाँ पे एक रोटरी पंप लगा हुआ है, यहाँ पे एक डिफ्यूजन पंप लगा हुआ है, एक रफिंग लाइन लगी हुई है, एक पैकिंग लाइन लगी हुई है। एवरीथिंग इज सेम, द चैम्बर इज सेम। जो चैम्बर हमने आपको दिखाया लैब के अंदर, द चैम्बर इज सेम। देयर विल बी ए गैस इनलेट, गैस इनलेट पीवीडी में भी होगा। देयर विल बी ए गैस एग्जॉस्ट, वो सीवीडी में भी, पीवीडी में भी होगा। रिएक्शन चैम्बर पीवीडी में भी होगा, सीवीडी में भी होगा। द ओनली डिफरेंस इज, अगर आपकी एक लैब हो गई है वो वाली जिसमें आपने एल्यूमिनियम फिल्म को ग्रो कराया है सबस्ट्रेट के ऊपर, अगर वो आपकी लैब हो गई है तो आपने देखा होगा एक स्पाइरल बोट रखी हुई है उसमें, स्पाइरल बोट। और उस स्पाइरल बोट का एक एंड यहाँ कॉपर में जा रहा है, एक एंड इधर कॉपर में जा रहा है, और ये हीटर का काम कर रही है। और आप यहाँ पे एल्यूमिनियम के कुछ पीसेस रखते हो और बाद में इसको हीट करते हो और वो एल्यूमिनियम जाके फिल्म के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ये होती है थर्मल, थर्मल इवेपोरेशन, और ये आती है अंडर पीवीडी के। तो बस इतना चेंज है कि यहाँ पे बोर्ड की जगह यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ। दिस इज ए सीवीडी, जस्ट दिस इज ए सीवीडी। यहाँ पे आपका एक हीटर है एंड ओवर दिस हीटर यू कैन प्लेस योर सबस्ट्रेट। और जिस चीज के ऊपर सबस्ट्रेट रखते हैं, वॉट एवर द थिंग विच होल्ड्स द सबस्ट्रेट इज नोन एज ससेप्टर। उसको हम क्या कहते हैं, ससेप्टर कहते हैं। ससेप्टर किसको कहते हैं, जो सबस्ट्रेट को होल्ड करता है। और सबस्ट्रेट किसको कहते हैं, जो फिल्म को होल्ड करता है। जिसके ऊपर भी हम फिल्म बनाएंगे, द मटेरियल ऑन विच वी विल मेक अ फिल्म is known as substrate. Whereas the thing which hold the substrate is known as a susceptor. तो ससेप्टर यहाँ पे क्या करते हैं, ससेप्टर में ही हीटर लगा देते हैं। तो ससेप्टर में जब हीटर लग गया तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली हीटेड है। अब हीटेड है, अब यहाँ से गैसेस आ गई, यहाँ से आ गई SiH4 प्लस यहाँ से आ गई PH3, मान लो साइलेन और मान लो फास्फीन। अब मान लो आपने क्या बनाना है, मान लो आपने एन टाइप सिलिकॉन बनाना है, एन टाइप सिलिकॉन। तो एन टाइप सिलिकॉन के लिए आपको सिलिकॉन चाहिए और फास्फोरस चाहिए, तो बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज, सिंस इट्स अ केमिकल वेपर डिपोजिशन, यू नीड टू react both the material. You need to choose the gases in such a way that they should react each other, and number two, after reaction they should get dissociated in their parent atoms. Si अलग हो जाए, H अलग हो जाए, P अलग हो जाए, H अलग हो जाए। So for that you need some temperature. हर एक गैस का अपना एक dissociation temperature होता है, dissociation temperature. So जैसे ही वो dissociation temperature पे कोई गैस पहुंचती है, it will immediately dissociate into their constituents. Si अलग, H4 अलग। H4 वोलेटाइल होने की वजह से पंप के द्वारा रिमूव कर लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बैठ जाएगा। So because this heating, you provide the temperature to these gases, and this temperature is normally 1300 degrees Celsius to 1400 degrees Celsius. इतना temperature इसका, because normally the dissociation temperature of the gases are around 1300 to 1400 degrees Celsius. So you need to maintain the temperature at the substrate. So now the gas comes, get dissociated, and then can be deposited over the substrate. This is the chemical vapor deposition method. In this, there may be many types of chemical vapor deposition. ये मैंने एक बताया, and ऐसे type के chemical vapor deposition को कहते हैं thermal CVD. ऐसे टाइप के केमिकल वेपर डिपोजिशन को कहते हैं थर्मल सीवीडी. इट कैन बी PECVD, प्लाज्मा इनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन, ये भी कह सकते हैं. दूसरा कोई होगा मेथड, उसमें वोल्टेज लगा देंगे, यहाँ जो गैस आई, इस गैस के बीच में दो इलेक्ट्रोड खड़े कर देंगे और उन दो इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, तो गैस जो है वो डिसोसिएट हो जाएगी अपने कंस्टिट्यूएंट्स में. ऐसी सीवीडी को कहेंगे प्लाज्मा इनहांस्ड सीवीडी. एक तीसरे तरीके की सीवीडी हो सकती है जिसको कह सकते हैं HWCVD. What is HWCVD?
HW मीनिंग हॉट वायर CVD। अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने गैस को डिसोसिएट करना है। अब यहाँ पे आप पूरे के पूरे सबस्ट्रेट को, भाई इसकी प्रॉब्लम क्या हो गई, ऐसे चैम्बर की या थर्मल CVD की प्रॉब्लम क्या हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ थर्मल CVD, कैन एनीवन टेल मी कि क्या थर्मल CVD का ड्रॉबैक हो गया? कोई बता सकता है क्या कि थर्मल CVD का क्या ड्रॉबैक हो गया? जो बताएगा मीनिंग क्लियरली है कि उसने बहुत मन से ये चीजें सुनी है जो मैंने बताई है। सीरियसली कोई बता सकता है क्या कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ थर्मल CVD? थर्मल CVD में आपको क्या ड्रॉबैक लगता है, क्या चीज पॉसिबल नहीं है थर्मल CVD के साथ? नहीं, कोई तो बताओ। भाई थर्मल CVD में हम सबस्ट्रेट को 1300, 1300 और 1400 डिग्री सेल्सियस पे रख रहे हैं। सो व्हाट, इससे क्या लिमिटेशंस आती हैं, इससे क्या हो सकता है? सर हायर टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल होगा। हायर टेम्परेचर मेंटेन करना तो मुश्किल नहीं होगा बेटे, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा ज्यादा भी मेंटेन किए जा सकते हैं। द प्रॉब्लम इज you need to choose such substrates which can stand at such high temperature. Suppose आप कोई फ्लेक्सिबल डिवाइस बनाना चाहते हो, एक वेरिएबल डिवाइस बनाना चाहते हो। आजकल आप हर स्टूडेंट ये चाहता है, हर बच्चा ये चाहता है कि मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी बॉडी के ऊपर ही पहन लूं। अब वो बैंड ऐसे पहन रहा है, कोई लेंसेस ऐसे लग रहे हैं, कोई हजारों तरीके के डिवाइसेस हैं, पल्स मीटर है वो बॉडी के ऊपर है। कोई शुगर का पेशेंट चाहता है कि मैं कंटिन्यूअसली ऐसी चीजें पहन लूं जिससे मेरा शुगर लेवल पता चलता रहे। एवरीबडी वांट्स नाउ वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जब वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स पहननी है तो इसका मतलब क्या है कि वो सर्किट जो होने चाहिए वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, तभी तो वेरिएबल पहने जाएंगे। बॉडी की शेप में कैसे आएगी कोई चीज अगर वो फ्लेक्सिबल होगी तो? इसका मतलब क्या है कि वॉट एवर द इलेक्ट्रॉनिक्स यू वांटेड टू मेक ऑन अ फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट। अब मुझे एक बात बताओ, विच फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट कैन स्टैंड एट 1300 डिग्री सेल्सियस? आप कोई भी पॉलीमर रखोगे ज्यादा से ज्यादा 100, ज्यादा से ज्यादा 150, ज्यादा से ज्यादा कोई और अच्छा पॉलीमर अगर आपने ढूंढ भी लिया तो वो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा दैट वुड बी 200 डिग्री सेल्सियस। So what does it mean? In thermal CVD, you cannot place a substrate which is, let's say the melting temperature of that substrate is 200 डिग्री सेल्सियस। उसको कैसे रखोगे आप? वो उठा के जैसे यहाँ रखा वो पिघल के खत्म। तो ये तो लिमिटेशंस हो गई। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट CVDs, तो ऐसे ही एक आई हॉट वायर CVD। हॉट वायर CVD में क्या है, करना तो आपने गैस का डिसोसिएशन ही है। कैसे करेंगे? तो लोगों ने एक नया तरीका निकाला, जैसे आप कुछ भी तरीका निकाल सकते हैं, तो लोगों ने क्या तरीका निकाला कि चलो सबस्ट्रेट को तो रख दो यहाँ, और सबस्ट्रेट को तो टेम्परेचर दो मत, और यहाँ पे एक जैसे बल्ब के अंदर वायर होता है, एक वायर ले लो हॉट वायर, और गैसेस को ऐसे ऊपर से इसके ऊपर डालो। So when the gases will come here and this wire is at 1600 or 1500 degree Celsius. अब now ये wire है जो 1500-1600 degree Celsius पे है. Now when the gas comes here, it will get dissociated over here. ये dissociate हो जाएगी। ये dissociate होके यहाँ पे धीरे धीरे इसके सिलिकॉन या हाइड्रोजन एटम्स वो आके यहाँ पे बैठने लगेंगे और फिल्म बन जाएगी। मतलब चैम्बर के अंदर सिलिकॉन अलग है, चैम्बर के अंदर फास्फोरस अलग है। Now they will combine and they will come here and will make a film. So ये एक अनदर मेथड हो सकता है, लोग इसको यूज करते हैं। इसको लोग यूज करते हैं कि भाई ठीक है, ऐसे नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें थर्मल बजट भी आपने बहुत कम कर लिया। आपका थर्मल बजट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया इसके अंदर। क्यों? क्योंकि एक वायर को हीट करना 1500 डिग्री सेल्सियस पे, और एक पूरे के पूरी प्लेट को, पूरी प्लेट, भाई आपने सबस्ट्रेट रखोगे, कोई सबस्ट्रेट छोटा इतना बड़ा पीस तो रखोगे ही, 4 इंच बाई 4 इंच का पीस तो रखोगे ही, तो इसका मतलब 16 इंच स्क्वायर को हीट करना और एक जस्ट वायर को हीट करना। वायर का क्या डायमेंशन होगी? अगर पूरा एरिया निकालोगे भी तो वायर का क्या आएगा, लेंथ आएगी पूरी की पूरी मान लो 15 सेंटीमीटर, और पूरी इसकी विड्थ, इसकी जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 1 mm। 1 mm डायमीटर का टंगस्टन का वायर ले लो कुछ भी एरिया नहीं आया। तो इतने कम एरिया को हीट करना और कहाँ इतने बड़े एरिया को हीट करना। सो
depending upon different sorry, different what I can say, different techniques have different drawbacks and they have some advantages, some disadvantages. तो ये सब चीजें हैं. So now the next thing is yes, this is a some model कि कैसे गैस काम करती है, किस तरीके से आती है. तो ये गैस इनलेट है, यहाँ से गैस आती है, ये रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर ये देखो ये रिएक्शंस होती हैं, डिफ्यूजन होता है, प्रिकर्सर, प्रिकर्सर ऐसे नीचे डिफ्यूज होता है एंड देन फाइनली डिफ्यूज होने के बाद वो जो है अपना डिफ्यूज होने के बाद जो है ये सबस्ट्रेट के ऊपर आता है, यहाँ सरफेस के ऊपर, और इसके ऊपर आने के बाद अपना ये यहाँ पे फर्दर डिफ्यूजन हो जाता है और डिफ्यूजन होके अपनी किसी मिनिमम एनर्जी साइट्स के ऊपर आके अपना कोई भी एटम्स बैठ जाते हैं. इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है. ओके. व्हाट इज पीवीडी? PVD refers to a family of processes in which a material is converted sorry, to its vapor phase in a vacuum chamber and condensed onto a substrate surface as a thin film. So कोई वेपर फेज से कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर से कन्वर्ट होके देन वो जो है अपना डिपॉजिट हो जाता है फिल्म के ऊपर. PVD can be used to produce coating of a wide variety of materials. Metals भी PVD से किए जा सकते हैं, PVD से फिर सिरामिक्स भी डिपॉजिट किए जा सकते हैं, PVD से सेमीकंडक्टर्स भी डिपॉजिट किए जा सकते हैं, PVD से एलॉयज भी किए जा सकते हैं, ग्लासेस भी किए जा सकते हैं, पॉलीमर्स भी किए जा सकते हैं. all can be done using PVD techniques, है ना. ये हम देखेंगे लेटर ऑन कि कौन कौन से मटेरियल कैसे कैसे इसके ऊपर डिपॉजिट किए जा सकते हैं. ओके. ऑल PVD प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ कोटिंग वेपर. एक तो वेपर बननी चाहिए, एक तो डेफिनेटली जिस भी मटेरियल को आपने डिपॉजिट करना है उस मटेरियल की डेफिनेटली कैसे ना कैसे करके वेपर बननी ही चाहिए, नंबर एक. ओके. उसके बाद क्या? सेकेंड स्टेप इज यू कैन सी कि वेपर ट्रांसपोर्ट टू द सबस्ट्रेट. वो वेपर जाके ट्रांसपोर्ट भी होनी चाहिए सबस्ट्रेट के ऊपर, जो बनी वो जाके ट्रांसफर भी होनी चाहिए. ओके. चलो ये एक चीज हो गई. कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ऑनटू द सबस्ट्रेट सरफेस टू फॉर्म ऑफ ए थिन फिल्म. और फिर सबस्ट्रेट के ऊपर जाके वो कंडेंस्ड होके उसने फिल्म बनानी चाहिए. दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस. ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हुआ. ओके. दीज स्टेप्स आर कैरिड आउट इनसाइड ए वैक्यूम. ये सारे के सारे वैक्यूम के अंदर ही स्टेप्स होते हैं. ये नहीं कि सब कुछ बाहर हो रहे हैं, जैसे आपने उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में देखा भी होगा. ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स कहाँ होते हैं? वैक्यूम के अंदर. सो इवैक्यूएशन ऑफ द चैम्बर ऑलवेज प्रोसीड्स द पीवीडी प्रोसेस, है ना. तो इसमें पीवीडी प्रोसेस में आपको ये सब चीजें चाहिए. ओके. थर्मल इवेपोरेशन. पीवीडी का फर्स्ट एग्जांपल है थर्मल इवेपोरेशन. थर्मल इवेपोरेशन मीनिंग कि नाउ हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल तो है, उस सॉलिड को एटम्स में कन्वर्ट कैसे करें, उस सॉलिड मटेरियल्स को एटम्स में बदलें कैसे, है ना. तो थर्मली यहाँ पर हम उसको बदलना चाह रहे हैं. थर्मली में क्या है? एक तो क्रूसिबल है. क्रूसिबल क्या? जो मटेरियल डिपॉजिट करना है उसको होल्ड करने के लिए क्रूसिबल होती है. अब ये क्रूसिबल ऐसी होनी चाहिए कि इस क्रूसिबल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए. कहीं ऐसा ना हो कि इस मटेरियल को मेल्ट करते करते क्रूसिबल भी मेल्ट हो जाए. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रूसिबल हैज टू बी वेरी वेरी हाई, है ना. ये हाई होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी ये हो गई, पहली चीज. ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं. लेट्स से हमें ऐसी क्रूसिबल मिल गई. ओके. अब उस क्रूसिबल के अंदर यू कैन कंटेन योर मटेरियल. उस मटेरियल को आप रख सकते हैं. जैसे ही आपने उस मटेरियल को रख दिया, नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू नीड टू स्लोली हीट अप दिस. ये आपके दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के अंदर वो क्रूसिबल है. यू नीड टू स्लोली हीट अप दिस. जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, so the whatever the material you are putting here it will get evaporized. अगर ये evaporized हो जाएगा तो वेपर फॉर्म में ये वेपर चारों तरफ, ये नहीं है कि सिर्फ ये यहीं जाएंगी. दिस वेपर विल गो ऑल ओवर द all in the vacuum chamber, है ना. ये सब तरफ जाएंगी.
सो द डिपोजिशन विल टेक प्लेस एट एवरी पॉइंट। ये नहीं है कि यहीं डिपोजिशन होगा, सब जगह पे डिपोजिशन होगा। प्रॉब्लम ये है इसकी कि कोई बात नहीं, डिपोजिशन सारी जगह होगा, बट फाइनली व्हाट विल बी हैपनिंग, फाइनली दिस विल गो एंड मेक द फिल्म ओवर हियर ऑन द सबस्ट्रेट। जो भी आपने सबस्ट्रेट रखा है उस सबस्ट्रेट के ऊपर आपको इसका डिपोजिशन मिल जाएगा। सो व्हाट इज द प्रोसेस? थर्मल इवेपोरेशन इज अ कॉमन मेथड ऑफ फिजिकल वेपर डिपोजिशन। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीवीडी एंड टिपिकली यूजेस अ रेजिस्टिव हीट सोर्स। तो यहाँ पे एक रेजिस्टिव हीटिंग के लिए हम हीट सोर्स ले लेते हैं टू इवेपोरेट अ सॉलिड मटेरियल इन अ वैक्यूम एनवायरनमेंट टू फॉर्म ए थिन फिल्म। थिन फिल्म को फॉर्म करने के लिए द मटेरियल इज हीटेड इन अ हाई वैक्यूम चैम्बर अंटिल वेपर प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड। तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। ओके, थर्मल इवेपोरेशन, ये थर्मल इवेपोरेशन का एक मॉडल दिखाया गया है कि ये हीट किया, हीट करने के बाद ये देखो ये हीटर है, ये हीटर ऑन किया तो ये रेड हो गया, तो यहाँ से मटेरियल जाने लग गए। ये कुछ एक इन्होंने बना दिया कि मान लो मटेरियल इधर ज्यादा चैम्बर की वॉल पे ना जाए, तो इसको यहाँ पे शटर कह देते हैं कि शटर लगा दिए, एंड ये शटर जो है ब्रेक करते हैं कि भाई चैम्बर हमारा गंदा ना हो, हर बार हमको चैम्बर क्लीन करने की ये सब दिक्कतें ना आए। सो यू कैन मेक लाइक दिस, एंड फिल्म जो है सबस्ट्रेट पे जाके आपकी डिपॉजिट हो जाए। इस तरीके से भी ये चैम्बर के असेंबली के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड? एक तो हो गया ये आप डायरेक्ट आप हीटिंग दे रहे हो और आप कर रहे हो। व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड? और अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग हीट टू इजेक्ट मटेरियल फ्रॉम ए सोर्स वी कैन बम्बार्ड देम विद हाई स्पीड पार्टिकल। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हमारे पास ये टारगेट रख लिया हमने, इस टारगेट को हीट करने की बजाय वी विल बम्बार्ड दिस टारगेट, इसको बम्बार्ड करेंगे किससे? हाई स्पीड पार्टिकल से। अब ये हाई स्पीड पार्टिकल भी कुछ भी हो सकते हैं, ये हाई स्पीड पार्टिकल फोटॉन्स हो सकते हैं, ये हाई स्पीड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये हाई स्पीड पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, ये लेजर हो सकती है ना। सो द मोमेंटम ट्रांसफर फ्रॉम द पार्टिकल, तो वो हाई स्पीड पार्टिकल जब इसको आगे बम्बार्ड करेगा तो उस पार्टिकल में एक मोमेंटम होगा, और वो मोमेंटम जब कोलिजन होगा तो वो ट्रांसफर कर देगा एटम्स को, जो सरफेस पे एटम्स हैं टारगेट के, एंड देन इम्पार्ट इनफ एनर्जी टू अलाउ द सरफेस एटम टू एस्केप। और वो एटम एस्केप हो जाएंगे, और एस्केप होते ही फिर वो एटम्स जो हैं आपके, वो एटम्स जैसे एस्केप होंगे दे विल गेट डिपॉजिटेड ओवर द सबस्ट्रेट, वो आपके सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। दिस कुड बी अनदर मेथड, बम्बार्डिंग इज अनदर मेथड, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट ए पीवीडी। हम इसलिए इसको पीवीडी का नाम दे रहे हैं। Okay, once ejected, these atom or molecules can travel to a substrate and deposit as a film. तब ये फिल्म बना सकते हैं। तो ये आपके हाई एनर्जी पार्टिकल हो गए, ये आपके सबस्ट्रेट से निकले, एंड देन दे आर टारगेट से निकले, एंड देन दे आर गोइंग ओवर टू द सबस्ट्रेट। तब वो सबस्ट्रेट के ऊपर अपना जाके और अपना डिपॉजिट हो गया। ये एक मेथड हो सकता है। There are several consideration here. क्या? Creating, controlling and directing a high speed particle stream. एक तो creation high speed particle का, दूसरा उनका कंट्रोल, तीसरा उनको डायरेक्ट करना सोर्स के ऊपर, कहीं वो पता चला डायरेक्शन ही उनकी यहाँ आ रही है, सोर्स है यहाँ, ठीक है ना। इंटरेक्शन ऑफ दिस पार्टिकल विद द सोर्स सरफेस एंड इमिशन यील्ड्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सोर्स सरफेस पे इंटरेक्शन करके इन पार्टिकल्स को और बाद में इनकी यील्ड्स को कम कर रहे हैं। और डिपोजिशन ऑफ द एमिटेड एटम्स ऑन द सबस्ट्रेट एंड फिल्म क्वालिटी, कि ये जो एमिट हुए हैं एटम्स, ये यहाँ पे सबस्ट्रेट पे पहुंच रहे हैं, कितनी स्पीड से पहुंच रहे हैं, और क्या इसकी फिल्म क्वालिटी है, ये सारे के सारे कंसिडरेशन का पार्ट होते हैं इसके अंदर। ओके, स्पटरिंग, द फर्स्ट मेथड इज स्पटरिंग। कैसे स्पटरिंग करना, क्या करना? सो इन स्पटरिंग द टारगेट मटेरियल एंड द सबस्ट्रेट इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। एक तो सबस्ट्रेट, ये तो हो गया आपका सबस्ट्रेट जिसको आपने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, और सॉरी, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट ये जिसको आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया एनोड, एंड ये टारगेट, टारगेट को आपने क्या दे दिया? टारगेट को आपने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। इस तरीके से आपने एक असेंबली बना ली। ओके, इस असेंबली के अंदर अब आपने क्या किया? इन दोनों पॉइंट के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में हाई पोटेंशियल यू हैव अप्लाइड, एंड लेट्स से ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, कोई भी एक गैस आपने इसके अंदर, इनर्ट गैस जो रिएक्शन ना करे,
वो गैस मान लो आपने इसके अंदर क्या कर दी, वो गैस आपने इसके अंदर मान लो फ्लो करा दी। ओके, वो गैस भी फ्लो हो गई इसके अंदर। जैसे ही गैस फ्लो हो गई और आपने हाई वोल्टेज इफ यू हैव अप्लाइड, वो गैस क्या हो गई, वो गैस आयनाइज्ड हो गई। वो गैस क्या हो गई, आयनाइज्ड हो गई। अब उस गैस के अंदर आयंस बन गए। मान लो आर्गन गैस थी तो आर्गन Ar2 गैस थी, अब आर्गन के इसमें आयंस बन गए Ar+। जैसे ही आर्गन आयंस इसके अंदर बन गए तो क्या होगा, जैसे ही आर्गन आयंस बन गए, नाउ टारगेट इज नेगेटिवली प्लेस्ड। टारगेट को हमने नेगेटिव प्लेस किया है, तो ये जो आर्गन पॉजिटिव आयंस हैं दे विल गो टूवर्ड्स द टारगेट। ये टारगेट की तरफ अपना जाना शुरू कर देंगे। अगर ये टारगेट की तरफ अपना जाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, ये हाई स्पीड से जाएंगे, बिकॉज ये एक्सेलरेट होंगे उधर की, और फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो ये हाई स्पीड टारगेट की तरफ जाकर टकराएंगे। और अगर हाई स्पीड से टारगेट की तरफ जाकर टकराएंगे, चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ से टारगेट के एटम्स को इजेक्ट करेंगे। और जैसे ये टारगेट के एटम्स को इजेक्ट करेंगे, दे विल बी दैट इजेक्ट, जो ये एटम्स होंगे टारगेट के, ये निकल के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे सबस्ट्रेट्स के ऊपर। This is how the sputtering can be done. Now, there are two type of sputtering. Number one, DC sputtering. Number two, RF sputtering. अब ये DC और RF का क्या मतलब है? DC meaning direct current, RF meaning radio frequency. So एक तो है कि आपने इन दोनों पोटेंशियल के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपने DC सप्लाई दी है, और एक है ये कि आपने RF सप्लाई दी है। तो बेस्ड ऑन अगर DC दी है, so we call it a DC sputtering. अगर आपने RF दी है, we call it a RF sputtering. अब ये क्यों डीसी देते हैं, क्यों आरएफ देते हैं, देखते हैं एक एक चीज, आराम आराम से सारी चीजें देखते चलते हैं। वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन देम so that the target is the cathode and the substrate is attached to a anode. A plasma is created by ionizing a sputtering gas, generally a chemical inert heavy gas like argon. The sputtering gas bombards the target and sputters off the material we would like to deposit. ना, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, बाकी हम सारा का सारा कल देखेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। इट्स नहीं नहीं 9:40 तक है ना लेक्चर, यस द लेक्चर इज टिल 9:40, नो ओके। सो ये आप देख सकते हैं मॉडल, तो किस तरीके से ये देखो, आयंस आए, पॉजिटिव आयंस आए टकराए, एंड दे हैव टेकन सम ऑफ द एटम विद देम एंड दीस एटम्स आर गोइंग ओवर द सबस्ट्रेट्स एंड देन गेट स्टिक टू द सबस्ट्रेट्स। ये देखो ये आए अपना सबस्ट्रेट, यस इस तरीके से, है ना। तो ये एक मेथड है डीसी स्पटरिंग। डीसी स्पटरिंग में क्या होता है कि यू हैव प्लेस्ड अ डीसी पोटेंशियल हियर, ओके। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर मान लो आपने डीसी पोटेंशियल लगाया भी है तो क्या होगा डीसी पोटेंशियल से, तो डीसी पोटेंशियल से क्या होगा कि मान लो ये टारगेट नेगेटिवली प्लेस्ड है और ये टारगेट, ये सबस्ट्रेट आपका पॉजिटिवली प्लेस्ड है। अब यहाँ पे आर्गन आयंस आ रहे हैं, आर्गन आयंस हिट कर रहे हैं टारगेट को और यहाँ से एटम्स निकल रहे हैं। अब सिंस ये नेगेटिवली प्लेस्ड है तो यहाँ पे आर्गन की एक लेयर फॉर्म होने के चांसेस हैं, आर्गन की एक लेयर फॉर्म होने के चांसेस हैं क्योंकि आर्गन यहाँ पे पॉजिटिव है, ओके, और ये नेगेटिवली है। सो आर्गन यहाँ पे रह सकता है इसके ऊपर, और सिंस अब अगली साइकिल भी ये तो डीसी कंटिन्यूअस डीसी वोल्टेज है, तो अब जो आर्गन आइटम्स आएंगे वो स्पटर किसको करेंगे अगर यहाँ पे एक आर्गन की लेयर बन गई तो ये एक प्रॉब्लम डीसी स्पटरिंग में होती है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाएगा, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे आरएफ भी बहुत से लोग यूज करते हैं, ओके। अब ये प्रॉब्लम कब होगी, जब आपका टारगेट कंडक्टिंग नहीं होगा। ध्यान रखना ये बात मैं दोबारा बता रहा हूं, जब आपका टारगेट कंडक्टिंग नहीं होगा तब डीसी में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, मान लो आपने टारगेट यहां पे रख दिया एक ऐसा जो कंडक्टिंग नहीं है, मान लो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज नॉट कंडक्टिंग, मान लो आपने जिंक ऑक्साइड रख दिया उठा के। अब जिंक ऑक्साइड कंडक्टिंग है नहीं, आर्गन आया, आर्गन यहां से कंडक्टिंग सरफेस के थ्रू जा नहीं पाया और बैटरी में मिल नहीं पाया, तो क्या होगा कि भाई आर्गन मतलब क्या, आर्गन जो आयन है तो नेगेटिव टर्मिनल से कोई इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाया और इलेक्ट्रॉन ने इस आर्गन को न्यूट्रलाइज कर नहीं पाया। जब न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया तो चांसेस आर वेरी हाई कि आर्गन की लेयर यहाँ पे जमा हो जाए। अब आर्गन की लेयर अगर जमा हो गई तो डेफिनेटली यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये हुआ विद द डीसी स्पटरिंग only conducting targets can be sputtered. Only conducting targets can be sputtered. अगर आपका टारगेट कंडक्टिंग नहीं होगा, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड द स्पटरिंग कैन बी स्टॉप्ड. स्पटरिंग फर्दर होगी ही नहीं बिकॉज द नंबर ऑफ आर्गन आयंस will stick to the target. If it is conducting, there is no problem because target conducting hai, so electron from the negative terminal of the battery will come and will get neutralized with the argon, और जैसे neutralize होंगे so argon will remove from the chamber. argon तुरंत उसको जो है वैक्यूम पंप अपना इवैक्यूएट करके ले जाएगा. This is how this DC sputtering works. Now अगर आपने नॉन कंडक्टिंग टारगेट कोई मान लीजिए स्पटर करना है, नॉन कंडक्टिंग कोई, तो कैसे करेंगे? नॉन कंडक्टिंग टारगेट को स्पटर करने के लिए देन यू रिक्वायर RF सप्लाई सो दैट इफ देयर इज अ चांसेस दैट द आर्गन आयंस आर गेट स्टिक टू द सबस्ट्रेट ऑफ द टू द टारगेट सरफेस. सो RF विल बी व्हाट, एक साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव, एक नेक्स्ट साइकिल में नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. सो एज सून एज दिस नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल विल कम for fraction of seconds, immediately this argon ion will remove from the substrate. ये यहाँ पे जो लेयर बनी थी ये रिमूव हो जाएगी क्योंकि एक रिपल्शन फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली वो रिमूव हो जाएगी. So this is how DC sputtering works. I hope ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना. सो आगे क्या है? यस, RF स्पटरिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि RF स्पटरिंग में आपको RF सप्लाई लगानी होती है सो दैट आप आर्गन को यहाँ से रिमूव कर सकें. डीसी स्पटरिंग वर्सेस RF स्पटरिंग का थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके नोट्स के लिए है, आपको हेल्प मिलेगी. द मेन डिफरेंस इज दैट द पावर यूज्ड इन RF sputtering is AC while that in DC sputtering is DC. During DC sputtering the working gas will be ionized. As a result many positive ions will be produced within the chamber and accumulate on the surface of the target. तो ये accumulation को अवॉइड करने के लिए RF चाहिए, और accumulation कब होगा? जब टारगेट नॉन कंडक्टिंग होगा. If the conductivity of target sputtering is not very good, in order to avoid this problem we can use AC power instead of DC. During the positive electric field, the positive ions are accelerated to the surface of the target and sputter it, while the negative field, the charging positive ions on the surface of target can be removed. तो एसी में RF स्पटरिंग में क्या है कि जो आ गए हैं उनको रिमूव करने के लिए वो रिमूव किया जा सकता है. Therefore, DC स्पटरिंग ओनली meant for deposition of fabrication of metal thin films. तो जो मेटल टारगेट है उनके लिए DC बहुत अच्छी है, such as copper, titanium, tungsten, molybdenum, है ना, सिल्वर, ये सब के लिए बहुत अच्छी है. If you try to sputter insulator, even after many hours of deposition, you will not be able to achieve thick films using DC sputter deposition. तो अगर आप नॉन इंसुलेटिंग टारगेट को करोगे तो आपको कोई फिल्म की थिकनेस नहीं आएगी. However, in case of RF sputtering, you can deposit insulating thin film very easily because of phenomena called self-biasing of a sputter gun and frequency used be very high. इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है कि इमीडिएटली वो क्या होंगे, अगर आर्गन आयन जुड़े भी हैं वहां पे तो दे विल बी रिमूव्ड. एक्युमुलेशन नहीं हो पाएगा उनका, है ना, कंपैरिजन. तो ये कंपैरिजन हो गया इवेपोरेशन और स्पटरिंग का. अब मान लो आपने दो टेक्निक सीखी, एक जिसमें जस्ट आपको थर्मली हीट करना है और हीट करते ही वो इवेपोरेट हो जाएगा, एक जिसमें स्पटरिंग करनी है. तो इवेपोरेशन में क्या होगा, 100,000 एटॉमिक लेयर पर सेकंड, इतनी हाई स्पीड है. क्यों? आपने टारगेट रखा, उसको जस्ट मेल्ट किया और उसको वेपर में बना दिया, वो जाके वेपर की वेपर जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो गई. यहाँ पे क्या है, स्पटरिंग की इसकी डिपोजिशन रेट विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि आपको हर एक को स्पटर करना है, स्लोली आपको स्पटर करना है. चॉइस ऑफ मटेरियल इवेपोरेशन में लिमिटेड है. क्यों लिमिटेड है? क्योंकि इवेपोरेशन में हो सकता है किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है. मान लो आप टंगस्टन को डिपॉजिट करना चाहते हो, कैसे करोगे? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ही अपने आप में बहुत हाई है, तो कैसे करोगे? नहीं कर सकते. स्पटरिंग में किसी भी मटेरियल को आप ऑलमोस्ट कर सकते हो. प्योरिटी यहाँ पे बेटर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ सकती है. एलॉय कंपोजिशन लिटिल है, नो कंट्रोल है. कि मान लो अगर आपको कोई फिल्म बनानी है सिलिकॉन कार्बाइड, तो जरूरी नहीं है सिलिकॉन और कार्बाइड दोनों का टेम्परेचर सेम हो. पहले पता चला एक जाके इवेपोरेशन हो गया, दूसरे का इवेपोरेशन बाद में हुआ. यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो. क्यों? क्योंकि टारगेट है, टारगेट में से चांसेस आर वेरी हाई कि वो सिलिकॉन और कार्बन दोनों को एक साथ निकाले और वो जाके डिपॉजिट हो. इस तरीके से. सो चेंजेस इन सोर्स मटेरियल इजी है, एक्सपेंसिव है. अगर मान लो आपको सोर्स मटेरियल चेंज करना है तो यहाँ पे क्या है, बोट है आपकी, बोट के अंदर दूसरा मटेरियल रख दो. यहाँ क्या है, आपको टारगेट बनाना पड़ेगा उसका. डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल,
यहाँ पे हाई है, यहाँ लो है। एडिशन कैसा है, यहाँ पे थोड़ा सा पुअर है, यहाँ पे एडिशन गुड है। क्यों? क्योंकि एवेपोरेशन में क्या हो रहा है, जस्ट जाते ही लेयर वेपर के फॉर्म में यहाँ पे लेयर चिपक जा रही है। अब जरूरी नहीं है लेयर बहुत ज्यादा स्टिकी हो, इसके साथ ना हो, तो क्योंकि जब वही आपने 1000 जब इतना डिपोजिशन रेट इतना हाई है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा एडिशन उसका पुअर रह सकता है ना। तो ये आपका था। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं कर देना चाहता हूँ, सारे लोग एलएमएस को चेक करते रहें। एलएमएस पे क्विज की इंफॉर्मेशन डाली गई है। देयर विल बी ए क्विज ऑन 12th of April। 12th of April को क्विज होगा 6 PM पर। देयर विल बी 30 क्वेश्चंस इन दैट क्विज, 15 फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड 15 फ्रॉम मैकेनिकल। एक ही क्विज होगा वो इकट्ठा, 30 क्वेश्चंस होंगे, ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड 30 मिनट्स का होगा। आपने गूगल लिंक उसके ऊपर आ जाएंगे। गूगल लिंक आपके अलग अलग ईसी के अलग होंगे, ईआईसी के अलग होंगे और ईएनसी के अलग होंगे। तो वो आपने अपने पर्टिकुलर लिंक पे जाके क्लिक करके वो देना है एंड सबमिट बटन प्रेस करना है लास्ट में टू रजिस्टर योर रेस्पॉन्स, है ना। आपका रेस्पॉन्स सबमिट बटन अगर नहीं प्रेस करोगे तो वो होगा ही नहीं। सो दिस इज हाउ द क्विज विल बी कंडक्टेड ऑन ऑन व्हाट ऑन 12th of April. So thank you. I am now ending the meeting. If everything is clear, I am ending the meeting now. Thank you.